मुझे अब ये लगता है कि काश मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा पाता। वो मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। उस समय हम सोच रहे थे कि 3 साल में बढ़िया सर्जन बन के सीधे हॉस्पिटल खोल लेंगे और वो मतलब कर देंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो रोहतक में एक ट्रेंड होता था, व्हेनेवर यू डू अ सर्जरी फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव टू थ्रो अ पार्टी। बट उसके बाद उसका फॉलो अप कौन कर रहा है? उसका फेलियर हुआ, क्या हुआ, डीएचएस से पीएफएन इवॉल्व क्यों हुआ? उसका पोस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन कब स्टार्ट करना है ये भी नहीं पता होता था। एक चीज़ हमारे इसमें लैक है, एजुकेशन सिस्टम में वो स्ट्रक्चर नहीं है। मैं अपने एक दोस्त से नागपुर में बात कर रहा था, ही सेड कि यार मैंने तो फर्स्ट ईयर में 50 टीबिया नेल कर ली। तो हमारे दिमाग में भी वही था कि यार मैंने तो इतनी नहीं करी। सो हम वो नंबर के पीछे भाग रहे हैं, नंबर के पीछे भाग रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि उन केसेस में क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली टॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आवर टुडेज टॉपिक इज इफ आई हैड टू स्टार्ट माय सर्जिकल रेजिडेंसी ऑल ओवर अगेन फ्रॉम स्क्रैच, हाउ वुड आई डू इट? एंड फॉर दिस कॉन्वर्जेशन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर आदित्य जैन. He was my colleague at Ames, and now he is again my colleague at Fortis Escorts Hospital, where he is a senior consultant. He's also the director of orthopedics at Step Up Joints. So let's welcome him. Welcome, Dr. Aditya. Hi, how are you? Good, good. Thank you for coming. So impressive. I was looking forward to this day. I was watching your podcast series, it was so good, and I was hoping that someday you would consider me as your guest and you will invite me. It's a really good, it's really a pleasure coming here. Thank you. Thank you so much. Also, I would like to add one thing before we begin, that please watch this video till the end because there's a very important announcement we have to make. So you've got the theme of the today's discussion, right? Definitely. So you have experience in orthopedics more than 10 years, around 12-13 years. Yeah, 12-13 years, yes. है ना? तो इस पूरी दौरान ऐसा कभी लगा कि ओके टुडे आई नो ऑर्थोपेडिक्स? कितने साल बाद लगा? सो आई थिंक इसका सबसे पहले मैं जो आंसर करूंगा ये होगा कि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग थिंग. यू लर्न डेली, इवन इफ you are sitting at OPD, you are looking at your follow-up x-rays, you are going to a conference as a delegate or as a faculty, you are talking to your friend, we are discussing cases over phone, you learn daily. Even still I read one research paper daily, so that I think that with each day, जैसे मोबाइल टीवी हर चीज़ में डेवलपमेंट होती है, आई थिंक the progression of science is also happening and many new things are coming, so सबको present literature भी आना चाहिए. Absolutely. Answer to your question is that after 7 or 8 years of my surgical training and doing cases of sitting in OPD, then I realized that now I have some confidence. But अभी भी मुझे लगता है I still need to learn and it will go a long way. What about you? How do you feel about it? I agree absolutely. Learning तो रोज होती है. Whether it is conferences, whether it's your own cases, follow-ups. Sometimes you see side effects of some cases, some drugs which you have been prescribing for so long. ऐसे learning रोज होती है. और मेरे केस में particularly, I would say it took me around 9 years, maybe 10 years after joining residency. So 6 years of residency, then 1 year of some practice. Then I went for a long-term fellowship. And I would say yes, 8 to 9 years is the sweet spot. I think most of the people, सबका यही आंसर होगा, because initially you do a surgical training that is called post graduation. तब आप नए पहले then तब आप learn कर रहे होते हो कि learn कैसे करना है. सही बात basically. है. फिर आप अपनी senior residency में that's a bridge between being a consultant, independent and being a resident. तो senior residency is a bridge where you learn, and the first time you have कि ये केस मेरा है और ये मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया है करने को, या उसने मुझे प्लान करने दिया, तो आप पहली बार सोचते हो, आप लिटरेचर पढ़ते हो, तो मुझे लगता है 8 to 9 years इज अ गुड टाइम. बट डेफिनेटली ये आगे पीछे हो सकता है किसी का भी. तो अगर इस 8 to 9 years को शॉर्टन करना हो, या फिर अदर वे अराउंड, इफ यू हैड टू स्टार्ट योर रेजिडेंसी फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम टुडे, व्हाट वुड यू डू डिफरेंट? सो आई थिंक इसका बेस्ट जो आंसर वो आप ही ने दे दिया कि शॉर्टन तो मैं नहीं करूंगा और कोई कर भी नहीं सकता. अच्छा. As I said, learning is a long way thing, and especially if you are in a surgical field, it's definitely a long learning curve. Absolutely. तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो इनिशियली जब पीजी की शुरुआत हुई थी, PGI रोहतक से आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पहले 1-2 साल तो समझने में लग गया कि क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली,
हो क्या रहा है? इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं, इधर से रात को 4 बजे गन सही शॉट बात वुंड्स है। आ रहे हैं, कॉम्पाउंड फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, बायलेटरल एम्पुटी आ रहे हैं, ट्रेन कट, इधर से उधर भाग रहे हैं। देयर इज नो स्ट्रक्चर, एज यू ऑल नो। जो एक चीज़ हमारे इसमें लैक है एजुकेशन सिस्टम में, वो स्ट्रक्चर नहीं है। इमरजेंसी केसेस पाइल अप हुए हैं, वहाँ से वार्ड की वर्क करने हैं, पेपर वर्क करना है, कंसेंट लेनी है, एक्सरेज इकट्ठे करने हैं, तो सही इन में। सब चीज़ों में लग जाती है टाइम। और फिर आप जब धीरे धीरे समझ में आता है तो आपको लगता है कि मेरे को तो, मैं तो सर्जिकल फील्ड में आया हूँ, तो मुझे तो इतने नंबर ऑफ केसेस करने हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने एक दोस्त से नागपुर में बात कर रहा था, ही सेड कि यार मैंने तो फर्स्ट ईयर में 50 टिबिया नेल कर ली। तो हमारे दिमाग में भी वही था कि यार मैंने तो इतनी नहीं करी। सो हम सही वो बात नंबर है। के पीछे भाग रहे हैं, नंबर के पीछे भाग रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि उन केसेस में क्या हो रहा है। सो अगर मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से कैसे अपना रेसिडेंसी शुरू करना है, तो यही है कि आराम से, बी स्लो, इट्स अ लॉन्ग लर्निंग कर्व। 8 साल हम भी डिस्कस कर रहे हैं, लगी गए। उस समय हम सोच रहे थे कि 3 साल में बढ़िया सर्जन बन के सीधे हॉस्पिटल खोल लेंगे और वो मतलब कर देंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट। सही तो बात इट है। टुक अस अ लॉन्ग टाइम। और जो चेंजेस, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली। स्ट्रक्चर में एक 3 फेजेस होने चाहिए। फर्स्ट इज बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर। मेरे प्रोफेसर कहा करते थे कि पहले एक अच्छा सर्जन से पहले एक अच्छा ऑब्जर्वर बनो। तो आस्क एब्सोल्युटली। क्वेश्चंस। हमको समय लगता था कि कुछ पूछ लेंगे, पता नहीं प्रोफेसर क्या सोचेगा। हम्म, तो हम्म, चाहे स्टूपिड सा भी क्वेश्चन हो, बी क्यूरियस, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, क्वेश्चंस पूछो, ऐसा क्यों किया जा रहा है सर। फिर आप यू एंटर द नेक्स्ट फेज, दैट इज असिस्टेंट। असिस्टेंट पे भी एक प्रोफेसर बोलते थे कि असिस्टेंट बनो भाई, रेजिस्टेंस मत बनो मेरी। तो सही बात असिस्टेंट है। को पता होना चाहिए कि मेरा सर्जन क्या करने वाला है, एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी। हाँ, इसी हाँ, बात हाँ। पे एक एग्जांपल है, मैं आई विजिटेड अ शोल्डर सर्जन फॉर शोल्डर फेलोशिप। वहाँ पे जो शोल्डर सर्जन सर्जरी कर रहा था, कभी वो सर्जरी करता था, कभी उसका असिस्टेंट सर्जरी करता था। असिस्टेंट और सर्जन दोनों इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन थी दोनों में कि अगर एक बैंकार्ड टीयर में कोई सूचर की बाइट ले रहा है, तो हम्म, दूसरा असिस्टेंट पहले से ही सूचर ग्रैबर लेके रेडी है कि जैसे उसने बाइट ली वो खिले लेगा। सो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन असिस्टेंट एंड सर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और अल्टीमेटली उससे पेशेंट आउटकम पे इफेक्ट आ जाता है ना। बिकॉज यू रिड्यूस द सर्जिकल टाइम, यू आर एब्सोल्युटली। बीइंग मोर एफिशिएंट। टीम वर्क। बिल्कुल टीम वर्क, जैसे व्हाट वी आर कमिंग विद स्टेप अप जॉइंट्स, इट्स अ टीम वर्क। कोई भी सर्जन अकेले सर्जरी नहीं कर सकता। सही और बात किसी को है। लग रहा है कि वो एक सर्जन अकेले सर्जरी कर रहा है, तो दैट इज फॉल्स। हाँ, फिर वो या तो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है आपसे। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर मैं फ्रैक्चर ही ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर किसी ने रिडक्शन पकड़ी है, तो हम्म, कोई ड्रिल कर रहा है, हाँ। कोई हैमर कर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड फेज में आता है सर्जन। हम्म, सर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। हम्म। तो एक वो सेइंग है ना, इफ यू हाँ। फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। राइट। तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सर्जरी प्लान करो, हम्म, फिर उसको असेस करो, पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ों को, आप उसको आउटकम्स को असेस करो, हम्म। मेक योर डेटा रेडी ऑफ एवरी केस, मेंटेन लॉगबुक। लोग मुझे बोलते थे कि लॉगबुक पीजी में क्या करेंगे, बट आज वेन एवर वी गिव इंटरनेशनल फेलोशिप्स के इंटरव्यूज हाँ, आपने हाँ, भी हाँ, दिए हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग दे एवर आस्क इज व्हाट इज योर लॉगबुक। बेसिकली रिकॉर्ड क्या है कि आपने किया है। मैं बोल तो रहा हूँ मैंने 50 केसेस किए, 100 केसेस किए, बट उसका रिकॉर्ड इज अल्टीमेटली योर लॉगबुक। हाँ, एंड दे नेवर आस्क कि आपने कितनी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करी है। दे हाँ। आस्क कि आपने कितना ज्यादा ऑब्जर्व किया है, कितना असिस्टेंट किया। उनको भी पता है कि कोई सर्जन तुरंत सर्जन नहीं बन सकता। मेरे So- एक सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे एक Yeah. सीनियर ने बोला था, वो हमारे भी कॉमन सीनियर हैं। तो जब मैं यूके में अप्लाई कर रहा था, एक्चुअली मैंने यूके में भी अप्लाई किया है बाय द वे, मैं सीधे जर्मनी नहीं गया हूँ। बिल्कुल, बहुत तो important यूके है। में जब अप्लाई कर रहा था, तो मैंने पूछा लॉग बुक में क्या भरना है, कितने केसेस भरने हैं, क्या है, मेरे पास कोई लॉग बुक नहीं है, कैसे बनाऊँ क्या। तो उन्होंने बोला देख, लॉग बुक की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर लॉग बुक में तुझे ये नहीं दिखाना है कि तूने नी रिप्लेसमेंट करे मल्होत्रा सर के साथ। बिल्कुल, तुझे ये दिखाना है कि तूने कितने फिक्सेटर्स लगाए, कितनी बिल्कुल, exactly. एम्प्यूटेशंस करी हैं, कितनी इमरजेंसी ड्यूटीज करी हैं, कितनी इमरजेंसीज खुद से हैंडल करी हैं। बिल्कुल, दे वांट टू नो कि अगर वो हायर कर रहे हैं किसी को, तो वो सिंसियर कितना है, बिल्कुल, उसको अपने आप से कुछ काम करना आता है नहीं आता है, और इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि सीनियर को ही नहीं बुलाएगा। बिल्कुल, इवन एट द लेवल ऑफ अ फेलो, मतलब आपकी रेजिडेंसी कंप्लीट हो चुकी है, अभी भी इतना सीनियर नहीं हो आप, एंड इट इज़ अ फैक्ट। सो एक और चीज़ मैं बोलूँगा, एज यू सेड कि 3 फेजेस हैं, ऑब्जर्वर, असिस्टेंट एंड सर्जन। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, एज यू सेड 50 टिबिया नेल, और ये नंबर मेरे को ना DHS का नंबर था, हमारे यहाँ PFN होता था। हाँ, और मेरा दोस्त बता था, मेरा एक दोस्त है लक्ष्य गोयल, उसने मेरे को बताई, आई थिंक ही डिड फ्रॉम RML, आई एम नॉट सो श्योर। उसने मेरे को बताया मैं तो DHS करें कम से कम 10, और मैं सेकंड ईयर में था, उनका DHS 10 कर लिए मेरे को भी करने। मेरे को रोहतक में 5 करके लगा था, मैंने ज्यादा कर लिए। तो इट्स हाँ, ऑल अबाउट नंबर्स। हम लोग नंबर ही चेस करते रहते थे, नंबर कभी ये सोचा ही नहीं कि जो किया है उसका रिजल्ट कैसा आया,
कर दिया. हमारे सीनियर्स रोहतक में एक ट्रेंड होता था, whenever you do a surgery for the first time you have to throw a party हाँ. to seniors and professor Right. everyone because you have done your first surgery. But वो पार्टी देके उसके बाद उसका फॉलो अप कौन कर रहा है? हाँ. उसका फेलियर हुआ क्या हुआ, डीएचएस से पीएफएन इवॉल्व क्यों हुआ, डीएचएस क्यों किया जा रहा है, इंडिकेशन क्या थी, ये किसी ने पूछा ही नहीं. सही बात So, है. I उसका think- पोस्ट ऑफ मोबिलाइजेशन कब स्टार्ट करना है ये भी नहीं पता होता था. बिल्कुल बिल्कुल. और ये सब ना एज डॉक्टर चौबे सेड ये सब हैंड्स ऑन का पार्ट है. हम लोग हैंड्स ऑन पूछते हैं. जो अभी भी मेरे पास एसएमएस आते हैं, एसएमएस तो नहीं आते खैर, इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं या बिल्कुल. आते हैं, वो लोग पूछते हैं हैंड्स ऑन कौन से कॉलेज में अच्छा है. सो हैंड्स ऑन इज बेसिकली एवरीथिंग अराउंड सर्जरी. हम भी तो यही पूछते थे. हाँ, हम भी ये पूछते हैं. wherever we हाँ. applied for residency, सबसे पहला क्वेश्चन एक सीनियर कहीं जाता था कि किसी हाँ. कॉन्टैक्ट के थ्रू कि सर वहाँ पे कितने केसेस मिल जाएंगे. हाँ. कभी ये नहीं सोचा कि कितना Cutting. सीखने मिलेगा, एजुकेशन कैसी है, हाँ. रिसर्च कितनी हो रही है. एक पॉइंट में जो मैं भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो डे 1 से करना चाहिए वो रिसर्च है. सही आपको बात आना है. चाहिए रिसर्च करना, पेपर कैसे लिखना है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी चाहिए कि पेपर कैसे लिखना है. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो इनफैक्ट एक पूरा मतलब ऑर्थोपेडिक्स का स्किल सेट एक तरफ है, बिल्कुल. और एक ये पैरेलल स्किल सेट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट फॉर ऑर्थोपेडिक्स, आई थिंक फॉर एवरी रेजिडेंसी एक ये पैरेलल स्किल सेट डेवलप होगा तो आपकी सर्जिकल ट्रेनिंग शॉर्टन हो या ना हो, बट जब खत्म होगी यू विल बी अ कंप्लीट सर्जन. बिल्कुल, क्योंकि जब लगी रहा है इतना टाइम 8 इयर्स हाँ. और आप वो डेली कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, तो आप पेपर्स भी लिखना सीखो. सही बात आप है. अपने वो पेपर लिख के सीनियर्स को दिखाओ जिनके पेपर्स में हाँ, उनका अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस है. आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखो. आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड सीनियर रेसिडेंसी नेम्स, तो आप कितनी अपने प्रोफेसर्स की प्रेजेंटेशन बना रहे होते थे. आपको प्रेजेंट नहीं करना होता था कहीं, हाँ. बट आप बना रहे होते थे. मैं आपसे पूछता भी था, यार आपको प्रेजेंट करना है? बोले नहीं, पहले मैं प्रेजेंटेशन बनाना तो सीखूं, हाँ. तभी तो प्रेजेंट ऑल कर तो उस पाऊंगा. टाइम गुस्सा बहुत आता था ऑनेस्टली. Definitely. मेरे को अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल. किसी और की, बट रेट्रोस्पेक्ट में बहुत फायदा हुआ. लेकिन बहुत हमारे फायदा हुआ. प्रोफेसर ने भी तो ये बोला कि जब वो लोग जो स्टूडेंट्स थे हाँ. तो उन्होंने भी बनाई थी. तो Exactly. एज वी सेड दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग कर्व. हम्म. तो ये भी आना चाहिए. और मेरे को लगता है कि जो तीसरी पॉइंट इसी में इम्पोर्टेंट है कि एक आपकी प्रेजेंस, हाउ इज योर पर्सनालिटी, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप कितने अच्छे स्पीकर हो पब्लिक ऑडियंस बहुत में. सही. तो ये बिल्कुल. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अब रियलाइज करता हूँ. मैं जितने मतलब अराउंड 3-4 ईयर्स से जितनी कॉन्फ्रेंसेज में एज अ फैकल्टी जा रहा हूँ, तो फर्स्ट 2 कॉन्फ्रेंसेज में मुझे मुश्किल हुई. आई वॉज वेरी रिलक्टेंट टू स्पीक, बट जैसे जैसे मैं परफॉर्म करता गया, जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करता गया, तो वो डर खत्म हो गया. हाँ, और आप- इनफैक्ट हर्ष महाजन सर हैं जो महाजन इमेजिंग वाले पद्मश्री, बिल्कुल. ही ऑल्सो सेड वन थिंग कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ना डे 1 से स्टार्ट हो जानी चाहिए. कि पब्लिक स्पीकिंग विल बी अ डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज डॉक्टर एंड अ ग्रेट डॉक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक ये कॉन्फ्रेंसेज की बात करी ना, उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा. नेटवर्किंग होती है कॉन्फ्रेंसेज में बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा. आपको अगर कोई प्रोफेसर पसंद है और उसके साथ आपको फेलोशिप करनी है, आप उसमें ईमेल लिखोगे, बट ईमेल के साथ अगर आपने वो सेल्फी अटैच कर दी सेल्फी अटैच जो आपने कॉन्फ्रेंस में उसके साथ ली थी, बिल्कुल. तो इट चेंजेस एवरीथिंग. आपको डेफिनेटली प्रेफर किया जाएगा नहीं तो एज आई सेड कि इंटरेस्ट शो करना है, बेसिकली. क्वेश्चंस पूछने हैं. आप Basically. मतलब आज जो मेरे को भी मेरी पहले फेलोशिप मिली थी 2017 में. आई वेंट टू एबरडीन स्कॉटलैंड फॉर अ शोल्डर फेलोशिप. इट वाज अ शॉर्ट टर्म फेलोशिप, बट वो मुझे मिली थी कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही. आई मेट अ सर्जन हु वाज फ्रॉम यूके, और उन्होंने मेरे को देखा, समझा, मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे उनकी टॉक के बारे में, अच्छा. और तब उन्होंने मुझे रियलाइज किया. फिर मैंने उनसे बोला, सर मैं कुछ दिन आके आपके पास देखना चाहता हूँ. सो ओह. उसके थ्रू मुझे मिली थी. नाइस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, सीखें, और हमेशा ये ना सोचे कि मेरे को कॉन्फ्रेंस में तभी जाना है जब मैं कोई अवार्ड लेने वाला हूँ, या मैं कोई प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ. वहाँ रह के बैठने में भी बहुत कुछ सीखने मिलता है. आज भी मिलता है. आज भी मिलता है. सही बात है. बिल्कुल. पैनल डिस्कशन में एटलीस्ट पता चलता है लोग क्या कर रहे हैं, नया क्या आ रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है. बिल्कुल. और लेटेस्ट नेटवर्किंग. ट्रेंड क्या है, किसके कितने फेलियर्स है. कोई अपनी फेलियर्स के बारे में बात ही नहीं करता. सही बात है. लेकिन जो लोग करते हैं, मुझे लगता है कि उनसे ऑनेस्ट कोई है ही नहीं, बिल्कुल. क्योंकि वो अपना बिल्कुल. फेलियर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप कैसे किसी डिफिकल्ट केस से बाहर निकलोगे. अबाउट दिस डिफिकल्ट केस मुझे आज भी याद है. यू रिमेंबर दैट नाइट, क्रिसमस ईव? Should we talk about it? I think we should, because this is a message कि प्लानिंग इज कितना इंपॉर्टेंट है, प्लान करना. सही बात है. तो इट वाज अ केस ऑफ फ्लोटिंग नी, डिस्टल Yes. फीमर एंड प्रॉक्सिमल टिबिया shattered, extending to shaft. Hmm. So we did femur nailing in around one and a half So, hours. for the context, we two were together as senior resident orthopedic surgeons in Yeah. Trauma Center AIMS. A lot of night duties, a lot of cases together, teamwork, everything. I think the teamwork word is very important here. I हाँ, think हमने मोस्टली ड्यूटी साथ में करी है. mostly. almost 90%. आपकी ड्यूटी हाँ, मैं था साथ में. So as हाँ. we said, surgeon assistant, surgeon assistant. absolutely. So we always used to exchange our roles.
हाँ, सो अब इस केस के बारे में बताओ। अगेन आई हैव टू थिंक, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। तो फ्लोटिंग नहीं था, हमने डिस्टल फीमर कर दिया था, बट प्रॉक्सिमल टिबिया में हमको लगा दैट वी वुड बेल आउट कमिंग बाय अ नेल, सो हम लोग नेल कर देंगे बिकॉज इट्स इजी थिंग टू डू एंड लेस सर्जिकल टाइम, अर्ली मोबिलिटी. So nailing is always preferred in lower limb fractures, but we struggled a lot. हाँ. I think मेरे को वो काउंट नंबर भी नहीं काउंट की कितने कर पा रहा हूँ, कितने आवर्स हो गए थे उसमें. बट उसके बाद what did we do? आप बताओ थोड़ा. So this is a very very important learning point. In fact, we learned, हम रुक गए. We said stop. Everything stopped. We took a pause. We started thinking कि भाई क्या हो रहा है? What we are doing wrong? We took a pause. Maybe it was 2 minutes pause. Hardly 2 to 3 minute pause. उसमें देखे, वापस से हमने इमेजेस देखे और फिर रीप्लान किया कि क्या गलत कर रहे हैं. एंड एक्चुअली उस पॉज की वजह से वी कुड थिंक कि वी शुड अवॉइड दिस नेल एंड इंस्टेड पुट अ प्लेट एंड कम आउट ऑफ द सर्जरी. और उसके बाद एवरीथिंग वेंट स्मूथ. तो इससे क्या, इसी से तो लर्निंग पॉइंट है. हाँ, एक तो पॉज लेना चाहिए, पेशेंस नहीं लूज कर. एक अगर प्लान आपका फेल हो गया तो प्लान बी रेडी होना चाहिए. बिल्कुल. ये प्लान ए फेल हो चुका है. प्लानिंग एग्जैक्टली. मुझे लगता है कि हमने वो प्लान पहले कर लिया. बट एक चीज व्हाट वी डिड गुड वाज कि हमने पहले से प्लेट भी बैकअप में ऑर्डर करी हुई थी. हाँ. सो आई थिंक टू ऑल द सर्जन्स माय मैसेज इज कि कीप योर आर्मेंटेरियम रेडी. आपको नहीं पता कि आप कहाँ फंस जाओगे. आपके पास केवार्ड्स होनी चाहिए पहले से, आपके पास प्लेट्स होने चाहिए, आपके पास स्क्रू सेट होना चाहिए, आपके पास नेल होनी चाहिए, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो. बट डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ प्लान बी. सो उस प्लान बी की वजह से ही हम लोग ने वो केस टाइमली खत्म किया. और लकीली मतलब you went to Germany. I followed up that patient for a long time. अच्छा. He's a policeman in Delhi government and he's doing really good. Nice. So very, nice. very That's nicely. good to hear. Yes. Yes, finally. वो अभी भी मुझे केस याद आया तो मैंने डिस्कस किया. हाँ, so basically अभी हमारी जो बात हुई, थोड़ा सा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में लाता हूँ. So we have talked a little about orthopedics skill development and little about professional parallel skill development. Yes. तो orthopedic skill development में एक हमने बोला कि फर्स्ट द माइंड सेट, दैट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ अ लॉन्ग लर्निंग कर्व, इट इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट. टाइम लगेगा. जब हमें 8 साल लगे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो सबको लगेगा. मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सेप्शंस होते हैं, बट आई थिंक 8 साल तो एवरेज है. उसके अलावा असिस्ट ऑब्जर्वर, फर्स्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर. आप अपने पीयर्स से कंपेयर मत करो, वो डिप्रेशन लाएगा. सबकी डिफरेंट है. हाँ, सबकी जर्नी डिफरेंट है. कोई अगर ज़्यादा केसेस कर रहा है तो फिर वो बाद में पोस्ट ऑप प्री ऑप सीखेगा, प्लानिंग सीखेगा. कोई पहले कर रहा है, मतलब इट इज़ अ जर्नी, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू. मैं इसमें एक चीज़ में इंटरप्ट करना चाहूँगा. मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें मेरे ख्याल से 80% ऑफ ऑडियंस शॉक्ड होने वाली है. वो ये है कि जो एम्स ट्रॉमा सेंटर के वन ऑफ द प्रीमियर प्रोफेसर है जो लीड करते हैं एशिया को, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जब वो अपने 3rd ईयर ऑफ एसआरशिप में थे, तब उन्होंने अपनी पहली टिबिया करी थी. और आज वो पूरे वर्ल्ड का ट्रॉमा के गाइडलाइंस बनाते हैं. सो मेरे को लगता है नंबर कभी मैटर ही नहीं करता. इट ऑल अबाउट कि वो एक केस कैसे करना है, वो एक केस की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, और उस एक केस से आप क्या सीखे हो. सो बेसिकली 6 years ऑफ ट्रेनिंग वेंट इनटू दैट वन केस. यस, सो दैट्स क्रेजी. एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि जब मैंने वो पोस्ट ऑफ एक्सरे भेजा कहीं फॉर हायर अथॉरिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई गलती नहीं निकाल पाया उसमें. और मुझे याद है जब हम लोग अपनी सीनियर रेसिडेंसी कर रहे थे तो 2-2 mm के स्क्रू के पीछे स्क्रूटिनी होती थी कि आपने इतना छोड़ दिया. बिकॉज क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, तो वो हमको सिखाना चाहते थे कि डू अ परफेक्ट जॉब. कि आउटकम्स कैसे रहेंगे वो पेशेंट बेस्ड भी होता है, फिजियो बेस्ड भी होता है, बट यू आर अ सर्जन, यू हैव टू डू योर जॉब परफेक्टली. इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. एब्सोल्युटली, हाँ, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. सो कमिंग बैक टू द लिस्ट, सो ऑब्जर्वर, फिर असिस्टेंट में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज असिस्टिंग प्रोफेसर मल्होत्रा, तो कम से कम 500 TKR असिस्ट करे होंगे मैंने, तब भी मुझे पहला TKR नहीं मिला. इनफैक्ट आई वॉज वेरी अपसेट एट हिम एंड ऑन माई को गाइड कि मैंने इतनी अच्छी थीसिस लिखी अपनी PG में, मैं MS ऑर्थोपेडिक्स हूँ, मुझे TKR क्यों नहीं दिया जा रहा है. बट जब मिला तो इट वॉज डन वेरी स्मूथली, परफेक्ट हुआ. उसके बाद बैक टू बैक मिले, कोई किसी में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ही नहीं. मतलब ठीक है, बैकअप में सर खड़े होते थे, बट द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इवन एज एन असिस्टेंट आई न्यू हिज नेक्स्ट स्टेप. मुझे पता था अभी नाइफ चला है, अगली चीज़ आएगी कॉटरी, उसके बाद अगला चीज़ आएगा होमन रिट्रैक्टर, फिर आएगा टिबियल रिट्रैक्टर, फिर आएगा कुछ और. मतलब
मेरे को एग्जैक्टली पता था सर को क्या चाहिए, सर का अगला स्टेप क्या होना और है, क्या वो ऐसे हाथ बढ़ा रहे हैं अगली चीज क्या होने वाली है। हाँ और नॉट इनफैक्ट आई थिंक सिर्फ रेसिडेंट्स नहीं, जो नर्सिंग टीम होती है हाँ वो भी इज अ पार्ट ऑफ टीम। वो एग्जैक्टली उनके भी सारे स्टेप्स रेडी होते थे कि आपको कुछ भी हाँ। मांगना हो, नर्सिंग टीम इज रेडी विथ योर इंस्ट्रूमेंट, और दैट आल्सो रिड्यूसेस टाइम। सो बेसिकली सर्जरी इज नॉट जस्ट अ सर्जन, उसमें पूरी एक टीम इन्वॉल्व है, और सर्जन का असिस्टेंट, सर्जन की नर्स, जो ओटी टेक्नीशियन है, पोस्ट ऑप में जो वार्ड में नर्स है, एवरीबडी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एवरीवन नीड्स टू बी ट्रेन्ड। हाँ इसी से एक बात और बताता हूँ, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एओ ट्रॉमा, आपको हाँ। पता होगा। तो एओ ट्रॉमा में जैसे एओ ट्रॉमा के स्टूडेंट्स के कोर्सेज होते हैं, ऐसे नर्सिंग कोर्सेज भी होते हैं। सो ओसीपी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे वो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन करते हैं कि आपके ट्रॉमा Right. सर्जन अगर ये कर रहे हैं तो आपको भी बेसिक आना चाहिए। सो दे एब्सोल्युटली डू ट्रेनिंग ऑफ ड्रिल कितना चलाना है, कितना वो रखना चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, ड्रिल बिट का साइज कितना होना चाहिए, तो दे डू द ट्रेनिंग। और एओ ट्रॉमा के ही जो सारे एक स्टेप्स फॉलो करके ही बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, बेसिक हमने साथ में किया था अहमदाबाद में। तो उसी के थ्रू आई गॉट माई सेकंड फेलोशिप, जो कि आई वेंट टू न्यूयॉर्क, दी लार्ज मतलब वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट ट्रॉमा सेंटर्स ऑफ यूएस। उसमें हम जब मैं गया तो इट वाज अ वेरी गुड सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। बट जो बेस्ट चीज़ मुझे वहाँ सीखने मिली वो ये था कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा केस था, जैसे हमने डिस्कस किया, उससे भी शायद गंदा। बट उसके बाद ना कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था, जैसे हमारे यहाँ होता है कि वो सबसे जूनियर की उसकी गलती थी या उस सिस्टर की गलती थी, टूनी के पहले ऑन कर दिया, उसने एक्सरे नहीं लगाया, तो सबसे जूनियर है वो सबसे ज्यादा उसकी गलती होती है, राइट। वहां पे डिस्कशन हुआ व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ कुड हैव बीन इट बेटर, और हम लोग क्या अलग कर सकते थे। कोई गलती नहीं हुई, जूनियर्स ने बढ़िया क्वेश्चंस पूछे, सीनियर्स ने उनके पेशेंटली जवाब दिए। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस दिन के बाद से मेरा कंसेप्ट चेंज हो गया कि कैसे एक लीडरशिप होनी चाहिए। राइट। सो यू नीड नॉट टू जस्ट स्क्रीम एट योर जूनियर एट एवरी केस। आपको समझना है कि वो भी एक अपने लर्निंग कर्व पे है और आप भी अपने लर्निंग कर्व पे हो। आज भी तो हम अपने लर्निंग कर्व पे हैं ही। एब्सोल्युटली। तो इसलिए सबको एज अ टीम एफर्ट काम करना है और कुछ सब कुछ डिस्कस करना है। और इनफैक्ट ये डिस्कशंस एम्स में भी होते थे एक अलग लेवल पे, जैसे जर्नल क्लब्स, सेमिनार्स और केस डिस्कशंस। सो एज अ रेजिडेंट इफ गिवन अ चांस, मैं वो केस डिस्कशन किसी भी चीज़ के लिए मिस नहीं करूँगा। मैंने कुछ मिस किए थे विच आई रिग्रेट। इनफैक्ट एज अ रेजिडेंट आई वुड टुडे स्क्रब इन एवरी केस, बिकॉज एक बार जब रेजिडेंसी खत्म हो गई फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर तुम्हें सब अपने आप करना है। अब तुम चाहोगे तो भी त्रिका सर का एसिटाबुलम दोबारा नहीं देख सकते। त्रिका सर अलाउ नहीं करेंगे, अगर अलाउ कर दिया तो पता नहीं क्या चैनल होगा, इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। अभी देख लो, अभी तुम त्रिका सर का भी देख लो, अभी तुम मल्होत्रा सर का भी देख लो, अभी तुम्हें जिसका भी देखना है, अभी जितने केसेस में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा अफेक्ट होता है, बट स्क्रबिंग इन एवरी पॉसिबल केस। तभी वो डिस्कस किया ना कि एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, या तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो, कि सही बात जैसे है। आपको किस ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है, कितने पेपर्स छापने हैं, तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड कि भाई दोनों की लाइफ इफेक्ट ना हो और आप उतना ही सीखो और आप को सीखने के साथ साथ आप उसको परफॉर्म भी करो लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंस इज नॉट जस्ट कि आप उससे अपने पेशेंट ला रहे हो, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल प्रेजेंस, कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आप अपने वर्क शो कर रहे हो। इट्स बेसिकली जस्ट अ एजुकेटर, लेस प्रोफेशनल वे ऑफ अदर देन लिंक्डइन। सो लिंक्डइन इज अ मोर प्रोफेशनल थिंग, बट इफ यू कम आउट एंड यू बिकम मोर इंटरेक्टिव, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ा रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, तो उससे भी मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो एजुकेट कर रहे हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं है। मतलब सॉरी टू बी ब्लंट, पढ़े लिखे तो हैं बट कोई डिग्री नहीं है उनके पास, है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं और हम लोग नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। वी हैव टू एजुकेट, और इनफैक्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी वी हैव टू मेंटर आवर जूनियर्स। उनको कोई तो बताए, हम ही बताएंगे, हमारे सीनियर्स हमें बताते थे। और इनफैक्ट जैसा बताया हमने, अब जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जो 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, दे आर ऑल्सो कमिंग ऑन सोशल मीडिया। आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, बट बहुत सारे प्रोफेसर्स अब जब हमारा चैनल्स कोई देख रहा है तो वो बोल रहे हैं कि हम भी करेंगे, और वो कर रहे हैं। मतलब पहले वही लुक डाउन अपॉन करते थे। बिल्कुल, और इवेंचुअली दे आर कमिंग। तो उसका मतलब कि आपको अपने जनरेशन के हिसाब से
आपको वो चीज़ तो आनी चाहिए तो जल्दी स्टार्ट करो भाई, जल्दी start रेजिडेंसी में करो। ही स्टार्ट कर दो बिल्कुल। सोशल मीडिया पे। ताकि आप उससे आपको एक और चीज़ है, प्रेजेंटेबल स्किल्स भी तो आ रही है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आप एजुकेशन उसके लिए आप पढ़ भी रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ वो बिना हाँ पढ़े वाले बोलने वाले तो आप नहीं बोले, इतने सारे ही हैं और मोस्टली वही हैं। तो आप जब कुछ हाँ प्रेजेंट कर रहे हो, आप जब कुछ भी लिख रहे हो, तो आप उसका ना पढ़ के लिखोगे, तो इसी बहाने हाँ, आप पढ़ोगे भी। absolutely. एक रीसेंट लिटरेचर्स देखोगे, रीसेंट आर्टिकल्स देखोगे, लास्ट 2 years में कितने आर्टिकल्स आए हैं इसके ऊपर। और ये- प्रेजेंटेशन बनाने से ही सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। वो तो अमेजिंग। ये तो मैंने इनफैक्ट अगर एम्स आप आके किसी सीखा है। उससे पहले तो बस हम लोग बस कर रहे थे, बट हाँ, एम्स आने के बाद जो मेरी एजुकेशन और मेरी स्किल की रिफाइनमेंट हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो मतलब बहुत पुश मिला है उससे। सिग्निफिकेंट लगती है। बहुत हाँ, पुश मिला है। मतलब मैं किसी को nice. भी, कोई मुझसे पूछता है कि एम्स के एसआरशिप में कितनी कटिंग है, सेम क्वेश्चन, हाँ तो मैं बोलता हूँ कटिंग भूलो, देयर हाँ इज अ मेथड, हाँ। रिसर्च, टीचिंग स्किल, पेशेंट केयर। ये 3 मेरे ख्याल से पिलर्स है एम्स के। ये बहुत Right. इंपॉर्टेंट है और ये अगर किसी को आ गए तो वो हाँ। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगा। आई थिंक ऑल ऑफ आवर सीनियर्स जूनियर्स ऑफ एम्स जो हाँ, they चाहे are doing सीनियर्स, exceptional. एवरीवन इज डूइंग एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, कोई डाउट ही नहीं है। सो नाउ अनदर पॉइंट जो यू स्टार्टेड टू टॉक अबाउट अर्लियर एज Fellowships. फेलोशिप्स। एग्जैक्टली। सो आफ्टर कंप्लीटिंग रेजिडेंसी, फेलोशिप्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन फेलोशिप्स? तो 2 टाइप की फेलोशिप्स होती हैं ओवरऑल, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। सही बात है। मैंने जो दोनों फेलोशिप्स करी वो शॉर्ट टर्म्स थी, मोर ऑफ अ विजिटेशन काइंड ऑफ थिंग, जिसमें मैं गया, मैंने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चंस पूछे जो पहले मैं नहीं पूछता था, प्लान समझे, थोड़े टाइम के लिए स्क्रब हुआ, किसी में स्क्रब नहीं हुआ, बट इट वॉज अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। मुझे अब ये लगता है कि काश मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा पाता। वो मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। अब उतनी लेट मेरे को जाना ठीक नहीं था, बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब एंड आई वॉज डूइंग माई केसेस। सो एक पेशेंट बेस बन जाता है और बहुत मुश्किल होता है। सो जितनी जल्दी आप अपनी लॉन्ग टर्म फेलोशिप करो उतना बेटर है। जैसे यूएसएमएलई 2 यूएस की फेलोशिप्स, वन ऑफ द हाँ। बेस्ट। यू रिमेंबर एब्सोल्युटली हमारे एक एब्सोल्युटली। जो सीनियर है, 2-3 सीनियर्स है, हाँ, दे हाँ। दे चूज फेलोशिप देयर, और फेलोशिप करके वो वहाँ पे अब कंसल्टेंट्स है। बट अगर कंसल्टेंट नहीं भी बनना तो आप फेलोशिप्स करके इंडिया भी वापस आ सकते हो, और अमेजिंग फेलोशिप्स बिकॉज है। एजुकेशन तो वेस्ट नहीं जा रही ना। एब्सोल्युटली। अमेजिंग फेलोशिप्स में गया जब वो शॉर्ट टर्म के लिए न्यूयॉर्क, तो देखा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, कोई हर एक ने अपनी स्पेशलिटी चुनी हुई थी और दे वर परफॉर्मिंग वेरी गुड। पेपर्स लिख रहे थे, एब्सोल्युटली। क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डिबेट्स कर रहे थे, प्रेजेंटेशंस दे रहे थे। सो एवरीवन वाज स्किल्ड फॉर अ पर्टिकुलर 1 or 2 things. एंड आई थिंक सेम जो यू वेंट टू जर्मनी। हाँ, मेरी भी थैंकफुली लॉन्ग टर्म फेलोशिप थी। मेरा तो प्लान था लॉन्ग टर्म फेलोशिप का, बिकॉज आई हैड रियलाइज सर्जरी का हैंड्स ऑन कोई भी पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं देगा। आपको 6 महीने, साल तो लगेंगे। सो मिनिमम आई डिस्कस विद अ लॉट ऑफ सीनियर्स, मेरे को ये डिसाइड हो गया कि 6 months इज अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ लॉन्ग टर्म फेलोशिप, लॉन्ग ड्यूरेशन फेलोशिप। तो मैं जर्मनी गया, सो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई वॉज एन ऑब्जर्वर इनिशियली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सब अच्छा लगा। बट देन एक प्रॉब्लम आई कि मेरे पास वहाँ का मेडिकल लाइसेंस नहीं था टू प्रैक्टिस टू ऑपरेट। ओके। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आई। उसके लिए फिर मैंने लैंग्वेज सीखी, वहाँ का लाइसेंस लिया, एंड देन एक्चुअली माई ट्रेनिंग स्टार्टेड ऑफ सर्जरी। एंड आई रिमेंबर बिफोर ऑल्सो गोइंग यू हैड टू लर्न सम लेवल ऑफ लैंग्वेज ना। स्टार्ट आई करा रिमेंबर एसआरशिप के दौरान जब यू सब मतलब थोड़ा रात भर बहुत, जाग के आप पढ़ते थे इस क्योंकि बारे में। मेरे को था अगर जाना ही है तो लाइसेंस लेके उनके साथ ही सर्जरी करनी है, उधर ही सीखना है। एंड इसलिए मैं एक एडवाइस दूंगा, आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ना तो थोड़ा सा लीक से हटके हो जाता है, बट इफ़ यू आर अ रेजिडेंट तो स्टार्टिंग में यूएसएमएलई का एग्जाम दे दो। अभी आपने पीजी के लिए तो पढ़ ही रखा आई है। वुड सेकंड दैट। हाँ मतलब मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट फेलोशिप कोई हाँ है। हाँ मेरे को लगता है एक जो मैसेज देना चाहूंगा मैं कि डोंट रश, इट्स अ सर्जिकल ट्रेनिंग, इट्स अ लॉन्ग वे, एंड लाइक फ्रैक्चर हीलिंग इट विल टेक टाइम। Great, well said. Yes. So I think we have covered almost every topic around this. Yeah, everything. But before ending this, I would like to congratulate you. To you as well. Yes, thank And you. to our third colleague, Dr. Dr. Pulak Pulak. Vatsya, yes. Yeah. So we three have come together to create a full stop orthopedic solution clinic. It's called Step Up Joints. Please find it on Instagram and on YouTube as well. So we'll be coming together, working together in a very efficient way, in an honest way. It would be a place with excellent care, honest opinion, efficient workflow. And आगे आप बताओ। आई थिंक क्लिनिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसके लिए वो एक विजन है, दैट वी वांट टू क्रिएट दैट विजन एंड डिलीवर पेशेंट्स एंड दी सोसाइटी कि हम लोग क्या करने वाले हैं
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली थी ऑनेस्टी एंड एफिशिएंसी. Hmm. इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो है ये है कि इट विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स. सो इट विल बी हैविंग फिजियोथेरेपी, इट विल बी हैविंग साइकोलॉजी, साइकैट्री, mental wellness, x-rays, blood investigations, nutritionist. If a surgery is advised, then we would have anesthetist, physician, and Absolutely. it will be a complete care thing. So it's not just a clinic. और जो फिजियोथेरेपी और रिहैब की बात हुई, आई थिंक फिजियोथेरेपी, रिहैब एंड द सर्जन, इनमें जो डिस्कनेक्ट होता है उसको हम कंप्लीटली रिमूव करेंगे. Because it will be supervised. It will be supervised by us. There will be a constant feedback system. हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हमसे बात करेंगे, हम फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे, एंड पेशेंट की रिहैब में कम्प्लीटली इन्वॉल्व होंगे. ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर दी, पेशेंट को बोला फिजियोथेरेपी करा लो, 2 हफ्ते 1 महीने बाद आ रहा है, एंड वी आर जस्ट गेसिंग कि होपफुली इसका रिजल्ट अच्छा आया हो. ऐसा नहीं होगा. फिजियोथेरेपी फॉर नॉन ऑपरेटिव पेशेंट्स, उनके लिए भी वी विल बी सुपरवाइजिंग इट कम्प्लीटली. मेंटल हेल्थ का इंटीग्रेशन होगा. एवरी सर्विस around orthopedics will be integrated into this one vision of ours, step of joints. Yeah, and that's why the tagline is Huh. ortho, physio, lifestyle. Huh. So lifestyle is the thing which are very important for 90% of orthopedic problems. Absolutely. Back pain, corporate patients coming to us with postural pains, sprains, and neck pains. जो लोग cervical बोल के tag करते रहते हैं. But everything is related to a lifestyle. And the first treatment to any orthopedic problem is always lifestyle modification. So that is the बिल्कुल. theme. So move well and live well. Absolutely. So thank you so much. Thank you, Dr. Thank Aditya. you. Thank you.